ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان دلوا تو کو ڈھونڈنا تھی ہم کہاں ہوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں صحیح کہا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي کلمہ بن رہا تھا کلام اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين بعد شمع رسالت کے پروانوں غوث القادر کے دیوانوں اولیاء لمبے لمبے ہاتھوں سے جیت دینے والے آقا اللہ کے یار رب کے دلدار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار کل نبیوں کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ دلکش بنائے میں آئیے اور آپ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس نبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ شمس جس کے اشارے پہ ٹھہرا رہا شمس کے معنی موسم سرد ہے باہر پروگرام ہے اور اس کے بعد بھی ابھی پروگرام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو صدر عالم بابو ان کی والدہ اور آج یہاں کئی زمانوں سے تو رہتا ہی نہیں یار محبت ان پورے گاؤں سے ہے کوئی 12 بجے رات کو یاد کر دے تو میں حاضر ہوتا ہوں تیرے جملے سال سے لیکن خیر ٹھنڈک کا ایام ہے سب کو تکلیف ہے باہر ہے کچھ اگر سایہ ہوتا تو کوہرا جو رہا نا یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے لیکن چلیے ٹھیک ہے حضور برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی روشنی ہمارے سامنے جو جل رہی ہے کون بہنی آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھنا رہیے خاموشی کے ساتھ اس لیے کہ حقیقت معنوں میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شمس جس کے اشارے پہ ٹھہرا رہا جس کے در پہ فرشتوں کا پہرا رہا جس کا نور علی نور چہرہ رہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اس نبی کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھیں جس نبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دین و دنیا دیے مال و زر بھی دیا دین و دنیا دیے مال و زر بھی دیا حور و غلما دیے خلد کوثر دیا ارے دامن مقصد زندگی بھر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی بارگاہ میں آئیے درود پاک پڑھیں جس نبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سورج ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں کوئی مثل یاد اللہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں اور شمس جس کے اشارے پہ ٹھہرا رہا ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں لیکن خیر چلیے بات لمبی چلی جائے اگر میں چلا جاؤں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سے بات کو صدقہ عطا فرمائے لیکن ٹوپی رکھ کر کے آیا کرو بات بہت اچھی بات ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہی کہوں گا اس لیے کہ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا ادب ہی سے انسان ہے تقریر سننا سنانا مقصد ہے اس کے عمل اس کی کچھ چیزیں آپ کا وی آئی پی آدمی نہیں ہے اس طریقے سے اللہ و رسول کی محفل ہے اس کو ہلکے میں مت لیجیے میلاد شریف کو اینٹی واٹی کے عبادت ہے اینٹی واٹی کے عبادت میلاد شریف کوئی مرنی ہو تو بھی میلاد شریف فاتحہ ہو تو بھی میلاد شریف ختنہ ہو تو بھی میلاد شریف شادی بیاہ ہو تو بھی میلاد شریف گھر مکان بن جائے تو بھی میلاد شریف اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میلاد شریف یہ اینٹی واٹی کی عبادت ہے اسرار بھائی ٹوپی دیا دیوے حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی بہت قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے حضرات آپ بتائیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے اس بچے کو حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے میدان کربلا میں جو کہ ان کا لیکن آئیے درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
एक तो करेला, दूसरे चढ़े नीम के ठा, एक तो ठंडी, दूसरे एक तो धुआं। अरे चलिए क्या आप तो बैठ करके सुन रहे हैं, बोलना हमको है, वो धुआं भी बैठ रहा है, ठंडक में आपका साथ दे सकते, लेकिन बोल रहे हैं धुआं गले पे बैठ, इसका ख्याल कीजिए। लेकिन चल चलिए 10-15 मिनट लगाते हैं, उसको बाद चलो वो रुस्तम भी आ गए माशाल्लाह, उस मोहल्ले के हैं शेख। आज तो लाओ बैठिए, चलिए आइए एक मरतबा कलमे शहादत कौन आ रहा है उसको मत देखिए, इधर देखिए, इसलिए अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। एक मरतबा कलमे शहादत शब्द पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात वाकई में ये ऐसी महफिल है जो आली जनाब बाबू सदर आलम साहब के वालिद मोहतरम इस दुनिया से पूछ कर तो सबको जाना है, कोई बचने के लिए नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी, सबको मरना बरहक है, इसलिए किसी को इख्तिलाफ नहीं। हजरात ये मान के चलिए कि मरना बरहक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकत मानो में मौत तो सबको आनी है, लेकिन उसी में से जो मौत जो दुनिया से चले जाते हैं उनके आल औलाद ही लोग कुछ ऐसे हैं वाकई अपने वालिद के लिए अपने मरहूमैन के लिए जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए ऐसा इंतजाम करते हैं कि ये इबादत उनके जाने के बाद भी वहाँ कब्र में काम आएगी। तो हज़रात ये हमारे पतलू भाई बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत ही हमको देखते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, तो वाकई में याद आ रहा है, इसलिए उनका चेहरा आज से शायद भी वो साल पूरा हो गया उनका इंतकाल हुए, जब उनकी याद बरसी मनाई जा रही है। रब ताला की बारगाह में यही दुआ है, या अल्लाह अपने हबीब के सदके में अम्बिया सहाबा ताबई अइम्मा किराम तमाम बुजुर्गान दिन के सदक़े में शोहदाए करबला इमाम हसन इमाम हुसैन 72 नफूसे कुदसिया के सदक़े में पीराने कई रोशन नबी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के सदक़े में, या इस मिलाद शरीफ के सदक़े में उनके गुनाहे सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं या अल्लाह उनके लिए कामयाबी अता फरमा। सभी ताबे की होगी आसमां फौलाद का होगा, जमीन ताबे की होगी आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे अदालत पर खुदा होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे अदालत पर खुदा होगा। अभी आप साहब पढ़ रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज की बात, तो वाकई में ये शेर मुझे याद आया कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। माशाल्लाह ये स्टेज वाले अगर हौसला अफजाई करें, और माशाल्लाह हमारे पथरू भाई के जो रिश्तेदार लोग थे ना बड़े दिलदार लोग, मैंने तो देखा है भाई कई मरतबा देखा, वो अंधेरे में और बात हो मुझे ना पहचान सके, लेकिन मैं तो वो मौलाना हो कोई पूरी किताब पढ़ करके नहीं पढ़ता समझ पाता, मैं तो कोरा कागज देख करके बता दूँ लिफाफा देख के मजमून बात लेता हूँ। इनके रिश्तेदार ऐसे हैं माशाल्लाह, जब मुलाकात होती है दिल खुश हो जाता है। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम। हज़रात अभी करबला के हवाले से अली के घराने की बात कर रहे थे, अली के घराने की बात कर रहे थे, वो अली वो हुसैन, तो वाकई में शेर याद आता है कि लोग बहुत से सारे लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन पाने के लिए करते, इमाम हुसैन पाने के लिए करते, लेकिन खुदा की कोई शायर क्या कहता है, आवाज दे तो जन्नत से कौसर निकल पड़े। इमाम हुसैन करबला की पवित्र धरती पे ले चला हूं, आवाज दे तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, ये सब्र का मकाम है, वरना अरे उंगली जहाँ लगा दे समंदर निकल। कुर्सियाँ उठा ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुल हसन साहब क़िबला, तकबीर, रिसालत।
आवाज दे तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े, ये सब्र का मकाम है, वरना उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। हकीकत मानो में मैदान करबला में कोई मुहताज नहीं था यार, हकीकत वो इतने कोई ऐसा था ही नहीं कि आवाज दे देते। अरे यार जब बचपन में जन्नत से जोड़े फरिश्ते लेके आ जाए तो और क्या हो सकता है। हकीकत मानो में जन्नत से बचपन ही में जोड़े आ चुके हैं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान में। हकीकत मानो में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुपट्टे की ये मेरी माँ और बहनों की भी मिलती रहे और मेरी माँ और बहनों की सब वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हकीकत मानो में शहरवानों हजरत सकीना ज़ैनब वो सब पे जाऊँगा तो बड़े लंबा वाक़या हो जाएगा, लेकिन बस इतना इसलिए कि आपको मैं बताऊं हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। बंद कर उसको, बहुत बड़ी ठंडी लग रही है यहाँ भाई, सुनो ना तो बस उसके बाद यहाँ मैं तो करवे करता हूँ ना, कोई और समझाएगा। थोड़ा सा बंद कर देना है, ये चल रहा है। चलिए हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारी बात सुनिए, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। अब काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में, गौर से सुनिएगा, काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। पहलों की हवाओं से आहिस्ता कदम रखे करते हैं मेरे आका आराम मदीने में। हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी, इखलास से पैदा है इस्लाम मदीने में। और इस डूबते हुए सूरज को हम देख के कहते हैं करता है सलाम उनको हर शाम, करता है सलाम उनको हर शाम मदीने में। अजी यार वो मक्का और मदीना का शहर है ना, कि हकीकत मानो मक्का भी शान वाला, मक्का भी शान वाला है, मक्का भी शान वाला तो मदीना भी शान। मक्का इज्जत की जगह है तो मदीना भी इज्जत की जगह। मक्का भी पाक है तो मदीना भी पाक है। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है तो मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। मक्का में अल्लाह का घर है तो मदीना में रसूलुल्लाह का घर है। मक्का में आबे ज़मज़म है तो मदीना में आबे कौसर है। मक्का में गारे हिरा है तो मदीना में गुंबद खुदा है। मक्का में बैतुल जब्बार है तो मदीना में यारों का यार है। मक्का में जलाले खुदा है तो मिलकर कह दो मदीने में जमाले मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत देर के बाद चलिए आते हैं। ये मोहब्बत की पहचान है और वाकई में हकीकत मानो में जब भी आप उलमा से मिलो, ये आप जान लीजिए, उलमा जो होते हैं अम्बिया के वारिस, अम्बिया के वारिस। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई होगा तो उलमा होंगे। आप ये मान के चलिए, सहाबा ने पूछा ये क्या उलमा ही के सुपुर्द आप करके जा रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये उलमा ऐसी कलम है, ऐसी ताकत होगी कि अगर हकीकत में आदमी गुमराह होगा, अगर उलमा की सरपरस्ती में रहेगा, आलिमों के फिहरिस्त में रहेगा, आलिमों के साथ बैठेगा, उठेगा, मिलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसका एक भी वक्त ऐसा नहीं है जो जाया चला जाए और वो ऐसी ऐसी चीजें सीख लेगा जो उसकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी। जान ऐसा नहीं है कि आप उलमा को कुछ दे करके आप अपने ऊपर फख्र करो, ऐसा नहीं। रब की बारगाह में कोई चीज़ ले लिया करो, जब दिया करो तो रो लिया करो। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे वो एक महबूब नबी के वारिस को मैं कुछ देने जा रहा हूँ, पहले कबूल की बात होती है। अल्लाह कबूल फरमा लिया, ले लिया करो। आप मस्जिदों में जाते हो ना, मस्जिद में जाते हो, जुमा का दिन आता, आप मस्जिद को क्या देखो, मस्जिद आपको लोटा देती है, पानी देती है, जानमाज देती है, मुसल्ला है और लाइट है, पूरा सब कुछ, इमाम है, मौजूद है, सब कुछ देती है। आप मस्जिद को क्या देते हो? दुनिया में जितना खर्च करोगे
आपने एक एक पैसे का रब की बारगाह में हिसाब दिया, एक एक पैसे का हिसाब, जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। लेकिन मस्जिद में जब आप आया करो, खुदा की कसम, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासवा है, वो पासवा हम उसके पासवा है, वो पासवा हमारा। और नजर न कर मेरे जुर्मों गुनाह बेहद पर, हम लोग बहुत बदकार हैं, सियाहकार हैं यार, लेकिन उस रब के महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है, इतना बड़ा एहसान अजीम है कि खुदा की कसम बहुत सारे नबी पैदा हुए, बहुत सारे, मूसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, बहुत सारे नबी पैदा हुए, कितना नाम गिनाऊं। लेकिन मेरे आका के जो उम्मती हुए, सुबह क़यामत तक मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं, मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं आ सकता, और उस नबी के उम्मती जैसा सुबह क़यामत तक कोई उम्मती नहीं आ सकता। कि हमारे आयब को कोई जाने, और नबियों के आयब, उम्मतियों के आयब को हम जान करके बैठे हैं। किसी नबी के उम्मती को बंदर बना दिया गया, किसी नबी को उम्मती को घर कर दिया गया, किसी नबी के उम्मती को कुछ बना दिया गया, लेकिन हमारे आयब को सुबह क़यामत तक कोई जान पाएगा? कोई नहीं यार, आएगा ही नहीं तो जान क्या पाएगा? आएगा ही नहीं। वो तो मेरे महबूब का करम है यार, खुदा की कसम, ऐसे नबी की उम्मती हम हैं कि रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, रात रुख में जुल्मत के रंगे मलाल आ गया, जग में जब आफ्ताबे कमाल आ गया, ऐ हलीमा मुकद्दर पे तू नाच कर, तेरी बोशीदा गुदड़ी में लाल आ गया, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिस्म ख्याल। खुदा की कसम, अब ऐसे नबी के हम उम्मती हैं यार कि आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जब आप कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे, आज कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, हकीकत में इस दुनिया को जब अलविदाई सलाम कह देंगे, ये हाथ भी, जो हाथ है ना, ये हाथ अपना नहीं, ये हाथ अपना नहीं। ये देखिए, मैं अभी जल्दी यहाँ जुमा पढ़ाने आ रहा था, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ यार। तो ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया का हाल है, ये तो इनकी मोहब्बत थी, इनकी वालिदा बहुत मानती है, तो मैं वाकई में लब्बैक बोला, वरना हिम्मत नहीं थी। लेकिन बोलने वाले में कोई ऐसी नहीं बात, रब का एहसान अजीम है, इसलिए कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती के नबी का नाम जिंदा है। सिर्फ बेदारी आप पैदा करें इंशाअल्लाह ताला, 1 घंटा नहीं यार, रतिया भर इसे सुनते रहोगे तो सुनाता रहूंगा। रब का एहसान अजीम है, मेरे माँ बाप की दुआ है और उलमा की दुआ है, मेरे उस्ताद किराम उर्दू के अल्फाज जैसे हाथ जोड़े खड़े रहते, कबूल असल से बोलता जा, मैं तेरे सामने इंशाअल्लाह अल्फाज का मुताबिक। रब का एहसान अजीम है, मैं अपने माँ बाप की दुआओं का मुताबिक। माँ बाप की दुआ तो एक ऐसी दुआ होती है। अभी मैं उस दिन जब यहाँ चले तक तकलीफ बोलने आया था, कल या परसों तकलीफ बोलने आया था, जलालुद्दीन भाई के यहाँ तकलीफ था, तो हकीकत में माँ के ऊपर मैंने तकलीफ बोला था, ये मेरे भाइयों, ये मेरे दोस्तों, ये मेरे नौजवान साथियों, अपनी माँओं को झटकारा मत। माँ एक ऐसी दौलत हुआ करती है, बाप एक ऐसी दौलत हुआ करता है कि खुदा की कसम, न रात को रात देखता है, न दिन को दिन देखता है, न गर्मी की तपिश को देखता है, न ठंडक के बर्फ को देखता है, न जो है बारिश के पानी को देखता है। अपने बच्चों की ख्वाहिश के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए कैसे कैसे वो बाहर निकल जाता है, कितनी कितनी झिपकियाँ खाया करता है, फिर भी अपने बच्चों का शौक पूरा किया करता है। इसलिए मैं तो उस दिन कहा था कि बाप के राज में बच्चा शौक पूरा करता है, लेकिन जब अपना वक्त आता है तो जरूरत पूरी करता है। बाप के राज में शौक पूरा होता है, अपना वक्त आता है तो जरूरत पूरी होती है। इसलिए कहीं बेटा है, कहीं बेटी है, कहीं बीवी है, कहीं अजीजों अकारिब है, उनकी जरूरत पूरी करने में हम अपनी शान और अपनी इज्जत बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब बाप का वक्त होता है तो बाप कैसे कैसे सब कुछ निछावर कर देता है अपनी औलादों के लिए। पथरू भाई ने भी क्या क्या नहीं किया होगा, सब कुछ किया, लेकिन वो छोड़ करके चले गए। हर एक आदमी चला जाएगा। ऐ तबस्सुम खुदा की कसम आज भी, ऐ तबस्सुम खुदा की कसम आज भी, अर्श से आ रहा है सलाम आपका। कैसे इंसान ये समझे मकाम आपका, आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका, और नबी या नबी हम पुकारा करेंगे, मदीने का हरदम नजारा करेंगे। मैं दीवाना होके जहन्नम में जाऊं, मेरे आका ना हरगिज़ गवारा करेंगे। हकीकत मानो में आप अपने वक़ार, अपनी इज्जत को बचाएं। मैंने उसी दिन कहा, कई मर्तबा कहा, मज़ारों पे जाओ ठीक है, सब जगह जाओ ठीक है, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पे भी जाया करो। जब कहीं आप निकला करो, आप बताओ कोई गाड़ी लेकर के कोई गैर आता है तो अपने आस्था की जगह पे जाता, अपनी आस्था की जगह पे जाता, जानता है वो मेरा रहबर है, कैसा है क्या है उससे नहीं मतलब, वो जाता है अपने रहबर को। रहबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है,
कौन कैसा रहबर है ये जानना जरूरी है। अपने रहबर के पास जाता है, अपने अगुआ के पास जाता है, वहाँ सब कुछ चढ़ावा पेश करता है, हर चीज करता है। अच्छी बात है, उसकी आस्था हो जाता है। लेकिन कोई बता दे गाड़ी लेकर के आता हो, रब का शुक्रिया अदा करने के लिए खाने खुदा में अल्लाह के घर में जाता हो, 2 रकात रब की बारगाह में शुक्राने की नमाज पढ़ता हो, और इमाम साहब से गले मिल करके अगर कहे कि मौलाना साहब, हाफिज साहब हमारे लिए दुआ कर दिए, है कोई गाड़ी लेके आया तो अल्लाह के घर पे गया? बताओ बता। मुसलमान ही ना हुआ, सिर्फ टाइटल लगा हुआ मुसलमान का, टाइटल लगा हुआ। अभी पूछ लो फजर में कितनी रकात है, जोहर में कितनी रकात है, असर में कितनी रकात है, मगरिब में कितनी रकात है, इशा में कितनी रकात है, ये नहीं बता। और ये कहाँ बता पाएंगे कि मगरिब किसने पढ़ा, असर किसने पढ़ा, जोहर किसने पढ़ा, मगर ये तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई नहीं बता पाता। फजर किसने पढ़ा, जोहर किसने पढ़ा, असर किसने पढ़ा, मगरिब किसने पढ़ा, इशा किसने पढ़ा, तो बहुत दूर की बात है। अभी तक अभी यही नहीं बता पाएंगे कि कलमा बता दीजिए। आप अभी कोई पूछ ले आपसे, आप मुसलमान हैं, तैयार बता दो, कलमा बता दो पूरा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरे आका के क्या नाम, मेरे आका के वालिद का क्या नाम था, मेरे आका की वालदा का क्या नाम था। अभी वालिद वालदा बहुत कम नहीं जानते, और कहीं वालदान कह दिए तो वो नहीं जानते। बताइए क्या मुसलमान, यही मुसलमान का टाइटल से मरना, और आप अपनी जवानी क्या करा। अरे यार खुदा की कसम, न ये हाथ मेरा है, न ये पैर मेरा है, न ये जिस्म मेरा है, कुल्लू मना रही है फानी वयबका वजहू रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जात है। मैदान महशर कायम होगा जब वहाँ सारे लोग इकट्ठा होंगे, और जब वहाँ आपसे पूछा जाएगा, कोई चीज पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि मखदूम सीना की चौखट पे गए थे कि नहीं, गाजी सरकार की चौखट पे गए थे कि नहीं, ख्वाजा करीम नवाज की चौखट पे गए थे कि नहीं, वारिस पिया के चौखट पे। ये तो आपकी मोहब्बत थी कि गए कि नहीं गए, लेकिन हकीकत फर्ज तो था वो नमाज, वो आपने किया कि नहीं, वो आपने किया कि नहीं किया। इसलिए कहता हूँ ना, नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करे। अरे मैं उसे देखा कि वो मुझे देखा करे। कुछ नहीं आता यार, मुझे मेरे आका भी सजदा करते थे तो खुदा की कसम यही कहते थे, या अल्लाह मेरे सजदे को कबूल कर, मेरे सजदे को कबूल फरमा ले। जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई, जमीन और जमा बनाया गया, वो भी जब सजदा करते थे तो भी रब की बारगाह में रोया करते थे। मैंने कितनी मर्तबा कहा, अगर आप कुरान लेकर के, जिनको पढ़ने नहीं आता, अगर वो बैठता है तो मुझसे ज्यादा सवाब पाएगा, मुझसे ज्यादा सवाब पाएगा। हाफिज साहब हो सकता है, मैं हो सकता है, हो सकते हैं कि वजू बना करके हम आपको दिखावे के लिए कुरान लेके पढ़े, मेरे दिल में थोड़ा घमंड आ जाए कि अरे मुझे कौम को दिखाना है तब मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब एक जाहिल जिसको कुछ नहीं आता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो जब वजू करेगा कुरान को उठाएगा तो रब को राज़ी करने के लिए वो उंगलियां रखेगा और आंसू बहाएगा कि अल्लाह ये कबूल करना। वो किसी के दिखावे के लिए, इसलिए उसको आता नहीं तो दिखाएगा किसी को, आ ही नहीं तो हमसे ज्यादा हो सकता है। आप खुदा के कसम कोई काम किए रब की राशि के लिए किया करिए, और मरना बरहक है, एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, और हकीकत मालूम में आला शेर है कि खड़े हैं मुनकर नकीर, कब्र की अंधेरी कोठरी होगी। आप सोचिए कि फरिश्ते उस वक्त खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में, कि सख्त मुश्किल जवाब में है। उस वक्त पता चलेगा ये मुसलमानों मरना बरहक है। लेकिन आज सदर आलम बाबू और उनकी वालदा ने जो ये किया है, उन्होंने अपने शौहर के लिए और उन्होंने अपने वालिद मोहतरम साहब के लिए, ये बहुत बड़ा काम है, वाकई में ये रायगा नहीं जाएगा। इसलिए बिस्मिल्लाह की वो बरकत लाइट, बिस्मिल्लाह की वो बरकत। माशाअल्लाह ये देखिए रोशनी दिया आप सुनते रहिए थोड़ी देर, इसलिए 7 बजे अजान है, इसलिए कि नमाज से बल्कि कोई इबादत नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि मैदानी महशर में कुछ और नहीं, सबसे पहले अगर कुछ पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और ये मुसलमानों, आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो, आज ही का मुहासबा कर लो। जितने लोग बैठे हो, आज जितने लोग बैठे हो, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कर लो। नाम मुसलमान, नाम मुसलमान, आप फजर से लेकर इशा का वक्त होने वाला, आप बता दो अल्लाह ने आपको पैदा किया। अगर जो खुदा देना जानता वो लेना जानता।
जो खुदा देना जानता है वो लेना भी जानता है। हकीकत मानो में जरा दर्द कुछ पैदा करो। मैंने सुना बहुत सारे लोग शुरुआ में भी शराबी कबाबी कितने लोग पीने वाले होते हैं, कितने लोग पीने वाले हैं। खिंजीर के गोश्त जिस तरह हराम हो उसी तरीके से शराब भी हराम है। आप बताओ यार कैसे मुसलमान हो यार, कैसे जमीर तुम्हारी गवारा करती है। कोई पियक्कड़ है उसके घर पे अगर कोई जवान बेटी है जवान बहन है तो वो हकीकत मानो में अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत से खेल रहा है, इसलिए उसका रिश्ता सिर्फ उस पियक्कड़ भाई उस पियक्कड़ बाप की वजह से नहीं आ रहा, किसी और की दिल नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी खुद बर्बाद कर रहा और कहता है मेरे घर रिश्ता नहीं आता, मेरे घर कोई नहीं आता। यार तुमने तबाह किया। जरा सोचो फजर से लेकर के ईशा का वक्त यसीन मुसलमान ही कहते हैं, सिर्फ मुसलमान नाम मत रखो यार, कम से कम कुछ किरदार है कुछ तरीके से पेश किया करो। एक नाई की दुकान पे आप कुर्सी पे बैठते हो, खुदा से ज्यादा आप एक नाई पे भरोसा करो, एक नाई पे भरोसा करके बैठते हो, कुर्सी पे बैठ जाते हो। कभी कभी तो मैंने किसी को देखा अस्तूरा चलवाता रहता उसको नींद आ रहा, दाढ़ी बनवाता रहता उसको नींद आ जाती, और इतना उसके ऊपर विश्वास है कि ये अस्तूरा मेरे गले पे नहीं चलाएगा, और अगर चला देना अस्तूरा तो उस अस्तूर कटे हुए पे टांका भी नहीं चलने वाला है, अस्तूरा का कटा हुआ टांका भी नहीं चलेगा। इतना विश्वास उस नाई पे करते हैं कि सो जाते हैं, उसे दाढ़ी बनवाते हैं। अरे उसके बाद क्या कहते हैं, अरे दाढ़ी अगर मौसम रख लेंगे फलन हाँ रूसी वाला है तो फलन हाँ नौकरी लगी है कम हो जाएगा। अरे यार बताओ यार, रिस्क देने वाला रब से का यार, बंद पत्थर के अंदर भी अगर कोई जानदार चीज है ना रब उसको रिस्क देता। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं यार, हम तो अशरफुल मखलूकात है। रब की जात पे भरोसा रखो, ऐसा नहीं मैं जानता हूँ रब की जात पे भरोसा रखो, रब की जात पे जिस दिन भरोसा आप रख लेंगे फजर से लेके ईशा तक बस यही गप शाप इनकी चुलाई इनके वहाँ उनके वहाँ इनके वहाँ, ईशा का वक्त हो गया, जिंदगी गुजर गई। बताइए आपने कितना जलवा पढ़ा, कितनी नमाज पढ़ी। आज की बात बता दो, आज की बता दीजिए। श्री मुसलमान हाँ देखा ये हो करते नहीं, हकीकत मानो ऐसे अंदाज में ऐसी किरदार से हो कि ऐसा न हो, इसलिए कि ढूंढा ही करे। हम तो ऐसे नबी के यार उम्मती है, मैं तो हमेशा वो कहता हूँ ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरी दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरी दामन में छुपा हो। मेरे आका जो अपने दामन में छुपा ले, खुदा की कसम कोई माल का लाल नहीं लगाने बशर में कि वो खींच ले, लेकिन उस तरीके से भी तो होना जरूरी है, उस तरीके से भी तो होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार कब्र में कैसे बरकत पहुंच जाए, ये मिलाद हो रही है, ये क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना सैयद नारा जाना। हमें किसी पे जाना ही नहीं यार कि फला ये कर रहा है, ढिका ये कर रहा है, ऐसे कर, हम क्या कर रहे हैं उसको तो भी करिए, हम क्या कर रहे हैं, जरा इसका ख्याल करा करिए यार। मुसलमान यार सिर्फ जिंदगी मत गुजारिए, सिर्फ अपने वक्त अल्लाह ने मोमिन को मुसलमान को, पूरे कुरान में मुसलमान का जिक्र हो, पूरे कुरान में मुसलमान का जिक्र जानते हो, मोमिन का, किसका, मोमिन का जिक्र है यार। कम से कम मुसलमान तो 72-73 फिरका सबका है, तो भला बता दीजिए है कहीं 72-73 फिरके हैं, सभी मुसलमान है, ईसाई मुसलमान, शिया मुसलमान, पादी मुसलमान, सब मुसलमान, लेकिन हकीकत मानो मोमिन कम से कम यार इस अंदाज में रहो। कुछ नहीं आता, मैं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, जब मेरे आपा सजदा करते थे तो भी रोते थे तो हमें और आपको क्या है, कम से कम आप ऐसे अंदाज में जिंदगी जियो। ये जो मिलाद शरीफ हुई है ना, तेरे रस्ते में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरी गली में होना दफन जन्नत इसको, तेरी गली में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। इसकी बरकत इंशाअल्लाह ताला जरूर आली जनाब पत्नी भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मिलाद के सबसे ज़रूर अता फरमाएगा। और इसलिए कि मुझे यकीन है यार कि मिलाद की जो मिलाद एक ऐसी इबादत है कभी गाएगा नहीं, इसकी बरकत सिर्फ ऐसे झूठो सुन लेना। मैं बताऊँ एक वाक़या बता दूँ हंसने वाला, लेकिन हंसी की बात नहीं है, यहाँ मजाक नहीं, ये तो ईमान ताज़ा होता। मैं स्टेज से कभी बहुत सारे नात खां, बहुत सारे तकरीर बोलने वाले ये बात कहता हूँ मज़ा आएगा, मज़ा क्या आता है, यहाँ मज़े की बात नहीं, ईमान ताज़ा करने की बात हो।
ईमान ताज़ा करने की बात कर रहे हो, मज़ा कहाँ, ये मज़े की बात होगी ना यार। मिलाद शरीफ एक ऐसी इबादत है, एक मौलाना साहब अकेले तकरीर बोल रहे, अकेले बोल रहे बहुत देर से, कोई नहीं आ रहा था, अकेले बेचारे बोल रहे। सुनिए मिलाद की बरकत क्या है कि बोल रहे थे, बहुत देर के बाद मौसम आधी घंटा बोल के चले गए, बहुत देर गई तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, इश्क़ नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। और वो कैसा दयार है यार कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी अच्छी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, वो मदीना। लेकिन खैर चलिए, इतनी वक्त बात आती गई तो मैं सुनाते, ये तो बहुत सारे लोग हैं। थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब तकरीर बोलते रहे, एक लड़का उसके घर से, सामने वाले घर से, उसकी अम्मी ने कहा अरे चले जा भाऊ कि हूँ आए है तहीं बैठ जा, के हूँ आए तहीं बैठ जा। अब मौलाना साहब हीरे न फिरे कुल आई गए, वही कुकरा, जितना गर्मी जितना गुस्सा आई गए। वो बैठा रहा बेचारा, सोची कि मैं ही ऊपरा कुछ जितना जहमत है मौलाना सब मुझे ऊपरा कुछ गुस्सा है, बैठा था वो भी बेचारा वो भी चल। तब तक मौलाना सब चलती है फिर ओके बात बैठा आई गए, चल। इतने देर घर गया, उसको नींद आ गई, उसके घर चोरी होती उसी रात में। देखिए बरकत, चोरी होनी, जैसे चोर लोग चढ़े उसी नींद में वो बगवाने लगा, आई गए तब तक चोर काटा लगा था जाग। देखिए बरकत मिलाद की बरकत यार, जब यहाँ हो सकती तो कब्र में नहीं हो सकती। बिल्कुल सुनिए, जब तक मौलाना साहब ने कहा था आई गए, तब तक उन्होंने बैठ ओके बाद, फिर तब तक नींदियम, थोड़ी देर के बाद बगवाना बैठ गए, तब तक आप कहीं क्या भाग तो जगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उठाया आई गए, बैठ गए, जैसे जाए तो चल और कुछ तेज भाग, उन्नीस में बगवा रहा। क्या हुआ? मिलाद की बरकत आई गए, बैठ गए। वहां सामने एक तलख उस बच्चे ने कहा था, मुझसे ने कहा था कि आई गए, बैठ गए, चल दिए, लेकिन वाकई वो घर गया, उसके घर चोरी होने वाली थी, लेकिन उसी नींद में अल्लाह ने उसको वो अदा कितना अच्छा लगा कि उसके घर की चोरी को बचा लिया उसी आवाज से। अरे यार, जब उस आवाज से घर की चोरी बच सकती है तो क्या मिलाद की बरकत से गुनहगार आदमी जानवर से नहीं बच सकता? बिल्कुल बच सकता है, इंशाअल्लाह बिल्कुल बच सकता है। बस नीयत साफ हो। न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। मानो वक्त बस इतना कहूँगा कि आप इस रात ज़्यादा सुनना, पूरी रात नहीं बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रब का एहसान अजीम है। आई एम स्टूडेंट आप दारुल अलीमिया जमदा साहिब डिस्ट्रिक्ट, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप चाहो जितना चाहो जैसे चाहो सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रब का एहसान अजीम है, लेकिन ज़्यादा सुनना, अमल सबसे पहले जरूरी है। आप कितने अच्छे डॉक्टर को आप दिखा के आइए, अमेरिका का हो, जापान का हो, फ्रांस का हो, कहीं का आप दिखा के यह एडवर्टाइज करिए, प्रचार करिए, हमने फला जहाँ डॉक्टर को दिखाया, बेहतरीन दवा दिया, अच्छी दवा दिया। डॉक्टर की दवा लेकर के आकर के न्यूज़ पे रख करके उसकी तारीफ करिए, दवा मत खाइए, तारीफ करिए, और जो उसने परहेज बताया उस परहेज नहीं बताइए। ठंडा पीते रहिए, अंडा खाते रहिए, और जो भी चीज़ें उसने परहेज बताया उसको खाते रहिए, और डॉक्टर की तारीफ करने से आपका मर्ज ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर ने जो बताया है दवा समय समय से उसको आप खाइए, और जो अमल बताया है उससे आप परहेज करिए, जो चीज़ बताया है तब आपकी बीमारी ठीक होगी। अब ऐसे नहीं कि मौलाना साहब हाफिज साहब बहुत अच्छी तकलीफ बोले, बड़े बेहतरीन शरीफ पड़े, कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अमल सबसे पहले चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सुनिए दुआ है या अल्लाह, अगर इससे बोलने में, जैसे मैं एलानिया सब कुछ बोला हूँ, जैसे ही एलानिया बोला, अगर मेरी जबान से
जाकर तेरी बारगाह में लोगों को गवाह बना रहा हूँ और सबको गवाह बना करके तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ। और आप लोग भी पढ़िए, हमेशा तौबा करना चाहिए, हमेशा कलमा पढ़ना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरब्बी रब्बी वअतूबु इलैह, और कलमे शहादत पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है पहरा तेरा, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर।